Hello everyone. So I hope you all are doing well and you are enjoying this series. So as you know in the previous part I have started with the endocrine system. So आज हम वही continue करेंगे and I hope आपको जो endocrine system का जो मैंने part cover किया था pituitary gland वो आपको अच्छे से समझ लग गया है and so let's start this endocrine system. So in this case, the second gland is, after the pituitary and the hypothalamus, the another gland is pineal gland. So if I'll talk about the pineal gland, where it is located, it is present in the brain part. So it is present in the dorsal side of forebrain. ब्रेन के पार्ट अभी नर्वस सिस्टम में आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट. फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस पीनियल ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन और इट इज़ लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. जो हमारा ब्रेन का मेन पार्ट है उसकी डॉर्सल साइड के ऊपर ये पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस इज व्हाट इट इज़ प्रोड्यूसिंग. क्या हार्मोन है, क्या सिक्रीशन है जो पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है. सो व्हाट इट इज़ डूइंग, पीनियल ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग और इट इज़ सिक्रीटिंग melatonin, and this melatonin hormone is very important as it control our body rhythm, or it is the, you can say the it control the rhythm of our body. It control the sleep wake cycle. पूरा 24 hours का जो हमारा cycle है, it is controlling that. Along with it, it is controlling the body metabolism and various other activities. So it is controlling sleep wake cycle of our body. इसके साथ साथ it is controlling body pigmentation, it control the body metabolism overall. So these are the few functions of this gland. As I have told you, it control the body metabolism and it control the body temperature. So these are the few functions of this pineal gland. You should know what it is secreting, and ये हार्मोन जो है ये क्या कर रहा है, it control the sleep wake cycle, our 24-hour rhythm. जो पूरे 24 घंटे का हमारी बॉडी का एक रिदम है वो कंट्रोल कर रहा है ये हार्मोन. उसके साथ साथ बॉडी में पिगमेंटेशन, बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, दे ऑल आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन. सो द नेक्स्ट पार्ट इज the another most important hormone, that is thyroid gland. So thyroid gland, as we know, it is the one of the most important gland जिसके बारे में हमें knowledge होनी चाहिए. A lot of people have this issue, right? And in future when you will complete the nutrition course, then अगर आपको इस gland के बारे में knowledge होगी तभी आप nutrition का part समझ पाओगे और तभी आप किसी person को specifically thyroid gland की problem से related जो भी उनको कोई issue है उसको solve करने में, उनको उस चीज़ से cure करने में you can help, right? So if I'll talk about the thyroid gland, first of all we should know where it is located. It is located on both sides of trachea. And it has two lobes. दो लोब्स हैं इस ग्लैंड के एंड ये ट्रेकिया के दोनों साइड लोकेटेड है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट आर द हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है. इन दिस केस इट इज़ प्रोड्यूसिंग टू हार्मोन्स, that is T3 and T4. T3 is triiodo
एंड T4 इज द टेट्रा आयोडो, मीन्स T4 है मीन्स टेट्रा आयोडीन्स, 4 आयोडीन से मिलके बना है ये। एंड T3 इज द ट्राई आयोडो, मीन्स 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो मिलके ये थायराइड सिक्रीशंस या थायराइड हार्मोन जो हैं वो बना रहे हैं। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड में बेसिकली 2 टाइप के टिश्यू हैं। थायराइड ग्लैंड हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू and follicle tissue. So it has 2 types of tissue. So in this case, this follicle tissue have the secretory function. Secretory role, and this is producing T3 and T4. And for the formation of these 2 ions, iodine ions are very, very important. So iodine ions are responsible for the formation of T3 and T4. नाउ अगर कोई पर्सन है उसके खाने में आयोडीन आयंस बहुत कम है, देन डेफिनेटली तो उनके अंदर है T3 या T4 की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, एंड दैट पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। एंड उसको हम बोलते हैं, अगर किसी की बॉडी के अंदर T3 एंड T4 का जो लेवल है वो कम हो जाता है, देन इट इज़ द हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी की बॉडी के अंदर T3 एंड T4 का लेवल सडनली इंक्रीज़ हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है फल से, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपरथायराइडिज्म। एंड फल से कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण बॉडी या हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो बॉडी है इट इज़ एडवर्सली इफेक्टेड, बहुत बैडली इफेक्ट होती है बॉडी। सो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस के साथ रिलेटेड जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ दी T3 and T4, they are the thyroid hormones. तो थायराइड हार्मोन की अगर ओवर प्रोडक्शन होगी, इट कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड लो प्रोडक्शन इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपर के केस में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है एंड हाइपो के केस में कम हो रही है। सो इन केस ऑफ अगर मैं हाइपर की बात करूं, ओवर प्रोडक्शन है तो भी बॉडी की फंक्शनिंग या बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होगा। ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। अगर पर्सन के वेट की बात करें, सो इन दिस केस द वेट ऑफ द पर्सन विल इंक्रीज। इन इफ आई टॉक अबाउट द लो प्रोडक्शन तो उसमें कम होगा। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ लो प्रोडक्शन द मेंटल रिटार्डेशन is very common. slowly what will happen, person will get mentally retarded. उसके person का जो nervous system है या neural conduction है, it will not go smoothly, so the person will get mentally retarded if they are suffering from this problem for a very long duration. उसके साथ साथ there is one problem, that is the cretinism. So in case of cretinism, they have the standard growth, बहुत ही कम ग्रोथ है। On the other hand, in case of hyperthyroidism, there is the exophthalmic goiter. जो नेक एरिया है वो swollen हो जाता है बहुत ज़्यादा।
So these are the main problems that are related with the thyroid hormones. Apart from this, thyroid gland का एक बहुत ही important function है apart from controlling all the body activities and thyroid hormones की अगर बात करें, so they are responsible for the maintenance of red blood cells की shape, red blood cells की growth के लिए they are also important, right? Apart from this, what they are doing, this thyroid gland, it is also controlling the calcium levels in our blood. So what it is doing, so thyroid gland, it will it secrete another hormone, apart from these two. Thyroid gland, it also control calcium ions level in blood, or in other words, if I'll say, it will decrease blood calcium because it is producing TCT, that is thyroid calcitonin. So this calcitonin hormone that is produced by the thyroid gland, what it is doing, ये blood calcium level को decrease कर रहा है, right? The next hormone is the parathyroid gland. So that's all about the thyroid gland. Function क्या है? कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करना. दिस इज द कैल्सिटोनिन का फंक्शन है. मेन हार्मोन्स जो हैं वो T3 एंड T4 हैं. नेक्स्ट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड. If we'll talk about the hormone produced by the parathyroid gland, this is parathormone. What this hormone is doing, it is also involved in controlling the calcium levels in the blood along with the calcitonin. So actual में parathormone, yeah, if I'll write the calcitonin and parathormone or PTH, they are antagonistic to each other. They are antagonistic to each other means ये एक दूसरे के opposite function कर रहे हैं. जैसे in case of calcitonin I mentioned कि it will decrease the blood calcium level. So what it will do, parathormone, it will increase the blood calcium level. It means जो PTH है, PTH is hypercalcemic hormone. On the other hand, calcitonin, it is hypocalcemic hormone. This is very important and every one of you should know this. So अगर calcium level blood में increase, if I'll say कि कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज करने हैं. सो व्हाट विल हैपन, ब्लड के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम आएगा. सो इट मीन्स डीकैल्सिनेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. जो बोन के अंदर सेल्स हैं उन व्हाट दे विल डू, वो कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देंगे. ऑन द अदर हैंड कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक है, मीन्स ब्लड के अंदर इसका काम क्या है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करना. सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. और इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ गया है तो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल जाएगा. थायराइड ग्लैंड ने क्या करना है, कैल्सिटोनिन को रिलीज करना है. कैल्सिटोनिन रिलीज होगा तो कैल्सिटोनिन के रिलीज होने से जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द SER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी एंड कैल्शियम वहां स्टोर हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो व्हाट दे आर डूइंग, दीज बोथ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर calcium balance. Now we should know the location of parathyroid gland. Parathyroid gland is exactly behind the thyroid gland. Thyroid gland, let's suppose, as I have told you, ki trachea. So if it is like this, so it is thyroid is on the both side of trachea. So it is on the both side of trachea. अगर हम back side देखेंगे तो in that case जो parathyroid हार्मोन है ये ऐसे 4 डॉट्स या 4 लॉब्स की फॉर्म में इट इज प्रेजेंट. So it is
behind trachea, right? So it have 4 lobes, 2 on each side of थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड में तो 2 लोब्स हैं कि थायराइड ग्लैंड का एक लोब ये है, ट्रेकिया है, एक लोब ये है. अगर पैराथार्मन की बात करें तो पैराथार्मन एग्जैक्टली बैक साइड है, तो ऐसे 4 लोब्स हैं. Next is the thymus. So if I'll talk about the thymus, where it is located, it is present in the dorsal side of heart and aorta. So it is located in the dorsal side of heart and aorta. So अगर मैं बात करूँ thymus की, thymus it act as a gland. इसके साथ साथ it is becoming the most important part of our immune system. So it is the main part of our immune system. ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. उसका क्या रीज़न है? बिकॉज इनसाइड द थाइमस बी और टी सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम के बहुत ही मेन सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग द मेन पार्ट ऑफ आर इम्यून सिस्टम, और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एंड अगर इस ग्लैंड की बात करें, व्हाट इट इज़ डूइंग और हाउ इट इज़ बिकमिंग द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स थाइमोसिन्स आर द हॉर्मोन्स or the secretions produced by thymus, और इन हॉर्मोन्स के कारण ही जो बी एंड टी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन हो रही है, राइट? एंड थाइमस ग्लैंड इन हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के कारण ही इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और उसके साथ साथ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है या इम्यूनिटी, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द टी सेल्स, एंड बी सेल्स जो हैं ये दे रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट? सो थाइमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर cell mediated immunity and humoral immunity. So these are the very general functions of the thymus and production. हॉर्मोन्स जो हैं दे आर द थाइमोसिन्स, एंड यही हॉर्मोन्स के कंट्रोल के कारण जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है इनसाइड द थाइमस ग्लैंड, राइट? एंड इट इज़ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऑल्सो, बीइंग इट इज़ अ ग्लैंड ऑल्सो, एंड इट इज़ अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर इम्यून सिस्टम, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन कि ये मेन पार्ट है इम्यून सिस्टम का, यहीं पर इन सेल्स की प्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो हो रही है, right? So the next gland is, it is a part of digestive system also, or it do come under the accessory digestive organ. So it is the pancreas.
पेनक्रियास के बारे में बहुत कुछ है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट। सो पेनक्रियास के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, पेनक्रियास हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जब एक्सोक्राइन फंक्शन था तो इन दैट केस आई मेंशन कि एक्सोक्राइन में इट इज प्रोड्यूसिंग द सिक्रीशंस जो डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, राइट। पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक जूस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एंडोक्राइन सिक्रीशंस की एंडोक्राइन सिक्रीशंस कैसे हो रही हैं। दैट इज व्हाई I have written it in under the endocrine system. So pancreas एक तो ये है accessory digestive organ, right? It have both exo and endocrine function. So for now I am discussing only the endocrine function. So pancreas के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। और इनमें भी दो टाइप के हैं फर्दर, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में वी डिड द लोकेशन ऑफ दिस, राइट। सो इन दिस केस दिस पेनक्रियास का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, what it is doing, ये alpha cells and beta cells they are producing the secretions. Alpha cells are producing the glucagon and beta cells are producing the insulin. So what they are doing, they are regulating blood glucose level. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाती है, सो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, सो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज ग्लूकोज बढ़ गई है, राइट। सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा मीन्स ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज है। सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, pancreas will release the insulin. Insulin released by pancreas stimulate glucose entry into cells and it will also enhance glucagon formation. और इन अदर वर्ड्स कि ब्लड से जो ग्लूकोज एक्सेस में बढ़ गई है, इट विल गो इनटू द इनसाइड द सिस्टम, ये इट विल स्टोर्ड एज अ ग्लूकागॉन, सॉरी एज अ ग्लाइकोजन, it gets stored as a glycogen. Now similarly अगर blood glucose level कम हो जाता है, so that condition is called as the hyperglycemia. So hyperglycemia if blood glucose decrease, blood glucose decrease होगा, in that case this glucagon will help in increasing the blood glucose, राइट। सो व्हाट इट विल डू, जो लिवर के अंदर, लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, लिवर के अंदर जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है, तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ग्लूकागॉन विल एक्ट ऑन द लिवर सेल्स ताकि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो रिलीज होके ब्लड में आ सके, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इफ आई हैव टू राइट कि ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है, सो ग्लूकागॉन इज द हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। व्हाट इट विल डू, ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है। इंसुलिन इज द हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, राइट। So in this case let's write the differences between these two hormones.
so that you will understand the functions of these hormones, और उसके साथ साथ जो पेनक्रियास की प्रोडक्शन का पार्ट है वो भी क्लियर हो जाए, पेनक्रियास की जो प्रोडक्ट्स हैं, सो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, राइट. सो दिस इज hyperglycemic hormone. This is hypoglycemic. Now what it will do, it is hyperglycemic, तो blood glucose level it will increase the blood glucose level. On the other hand, insulin will decrease the blood glucose level, so it will increase blood glucose level, so it will decrease blood glucose level. On the other hand, if I'll talk about the glucagon, blood glucose increase करेगा, it means it promote ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है ये उसको प्रमोट कर रहा है कि ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ऑन द अदर हैंड इट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस. कि जो ग्लाइकोजन है उसकी फॉर्मेशन को एनहांस कर रहा है इंसुलिन. So these are the general differences between these two hormones. So that is how ये दोनों hormones जो हैं they are very important and they are responsible for the homeostasis of blood glucose. तो ये blood glucose level को दोनों hormones जो हैं they maintain blood glucose level.